جو بھی بے روزگار ہے، ہم آج آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ کا ایڈریس دے رہے ہیں، اناؤنس کر رہے ہیں ایک ویب سائٹ۔ کورونا سے متاثرہ عوام کو ریلیف کے لیے حکومت کے بڑے اقدامات۔ وزیر اعظم عمران خان نے روزگار ویب پورٹل کا افتتاح کر دیا۔ چھوٹا کاروبار کرنے والوں کے لیے بھی امدادی پیکج کا اعلان۔ پیکج کے تحت حکومت کمرشل اور صنعتی یونٹس کے 3 ماہ کے بجلی کے بل بھی خود ادا کرے گی۔ وزیر اعظم کہتے ہیں لاک ڈاؤن کے منفی اثرات معیشت پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ کم از کم 6 ماہ یا 1 سال تک ہمیں اسی صورتحال میں رہنا پڑے گا۔ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں پورے بر صغیر میں سب سے کم ہیں۔ ہم نے ایک ہی بار میں 30 روپے تک کی کمی کی۔ وزیر اعظم عمران خان کی گفتگو۔ حکام کو باقی چیزوں کی قیمتیں بھی کم کرنے کی ہدایت۔ کہا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے ثمرات عوام کو ملنا چاہیے۔ اس بار ٹیکس کی وصولی بھی 35% تک گر گئی ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے خطرناک وار میں تیزی آ گئی۔ 24 گھنٹوں میں ریکارڈ 32 افراد جان سے گئے۔ ملک بھر میں اموات کی تعداد 432 تک پہنچ گئی۔ 497 نئے کیسز رپورٹ۔ 18,770 افراد مہلک مرض کا شکار ہو چکے۔ سندھ اور وفاق میں خلیج بڑھنے لگی۔ صوبائی وزراء کی تنقید بھری پریس کانفرنس۔ کہا اپوزیشن یکجہتی کی کوشش کر رہی ہے لیکن 18ویں ترمیم کا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے۔ حکومت کو بنیادی مسائل کا ادراک نہیں ہے۔ عمران خان قوم کو تقسیم کرنے کے در پہ ہیں۔ کبھی امیر اور غریب کی بات کرتے ہیں، کبھی لاک ڈاؤن پر اختلاف کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کابینہ کیا فیصلے کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے تمام صوبوں کا دورہ کیا لیکن سندھ نہیں آئے۔ سندھ حکومت کی تعریف ان سے ہضم نہیں ہو رہی۔ صوبائی حکومت ڈرامے بازی بند کرے۔ وفاقی وزیر فیصل واوڈا کا سندھ کے وزراء کو جوابی وار۔ سندھ حکومت پر اربوں کی کرپشن کا الزام بھی لگا دیا۔ شہباز گل کی بھی تنقید، بولے لاک ڈاؤن کوئی ویڈیو گیم کا بٹن نہیں کہ دبایا اور نظام رک گیا۔ سندھ حکومت کے وزراء مسلسل غلط بیانی کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت نے ضرورت کا مطلوبہ طبی سامان بروقت سندھ حکومت کو پہنچایا۔ صوبائی وزراء جھوٹ بولنے سے پہلے حقائق کا مطالعہ کر لیں۔ پنجاب میں زائرین اور تبلیغی جماعت کے 90% مریض صحتیاب۔ لاہور، راولپنڈی، ملتان، گوجرانوالہ اور گجرات میں اسمارٹ سیمپلنگ کا سلسلہ شروع۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں کل سے روزانہ 6000 ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ لاک ڈاؤن سے متاثرہ 28 لاکھ خاندانوں میں 34 ارب روپے تقسیم کیے جا چکے۔ کاروبار اور صنعتیں کھولنے کے لیے سفارشات بھی وفاق کو بھجوا دی۔ بیرون ملک سے آئے افراد کو بھی گھروں میں قرنطینہ کرنے کی سفارش۔ عثمان بزدار سے صوبائی وزیر اسلم اقبال اور چیئرمین ٹویوٹا علی سلمان کی ملاقات۔ چیف منسٹر فنڈ میں 72 لاکھ روپے کا چیک کیا۔ سندھ میں کرونا وائرس کی صورتحال پر وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو تشویش۔ بتایا آج مزید 427 کیسز رپورٹ ہوئے۔ صوبے میں مریضوں کی تعداد 7000 سے تجاوز کر چکی۔ عوام تعاون کریں تو وبا کو شکست دی جا سکتی ہے۔ کراچی میں کرونا کا شکار پولیس اہلکار صحت یاب ہو گیا۔ خیبر پختونخوا میں کرونا وائرس سے اموات کی شرح سب سے زیادہ۔ آج مزید 11 اموات۔ صوبے بھر میں ہلاکتوں کی تعداد 172 ہو گئی۔ مزید 108 کیسز بھی رپورٹ۔ خیبر پختونخوا میں 2907 افراد وائرس کا شکار۔ وزیر صحت تیمور خان جھگڑا کی تصدیق۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریڈ برانچ کے ملازم میں بھی کرونا وائرس کی تصدیق۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو فوری بند کرنے کا حکم نامہ جاری۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو ہائی کورٹ میں جراثیم کش اسپرے کرانے کی ہدایت۔ کے 103 اسپتال میں بدترین حالات، مریضوں کا ایک بار پھر احتجاج۔ طبی معائنے کے لیے کوئی ڈاکٹر آتا ہے نہ صفائی کا کوئی انتظام ہے۔ مریضوں کا شکوہ۔ کہا حکومت سہولیات نہیں دے سکتی تو گھر بھیج دے۔
कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन पर मौसर अमल दरामद नागुज़ीर, मगर आवाम की गैर संजीदगी बरकरार। नरमी का नाजायज फायदा, कराची से खैबर तक बिला जरूरत सड़कों पर मटर गश्त। मास्क की हिदायत और समाजी फासले का उसूल शहरी भुला बैठे। कराची में कातिल डोर में फिर एक जान ले ली। नाजिमाबाद में पतंग की डोर फिरने से 2 साला बच्चा जान बहक। शनाख्त सुफियान के नाम से हुई। बच्चा मलिक खोकरापार का रिहायशी था। वजारत इत्तलात में बेहतरीन टीम आई है। पर्दे के आगे शिबली फराज और पीछे बाजवा हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, नवाज शरीफ के बाद फिरदौस आशिक अवान भी कहेंगी मुझे क्यों निकाला। ये भी कहा शुगर माफिया हर पार्टी में मौजूद है। इमरान खान फैसला कुन जंग लड़ रहे हैं। कोरोना वायरस से दुनिया भर में 2,40,000 से ज्यादा अफराद हलाक। अमेरिका में अमवात 63,783 तक पहुंच गई। इटली में 28,236, स्पेन में 25,100 और बरतानिया में 27,510 अफराद हलाक। ईरान में अब तक 6,100। भारत बाज न आया। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की फिर दहशतगर्दी। हाजीपुर और सिंह सेक्टर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक भारतीय फायरिंग से एक खातून जख्मी हुई। सऊदी अरब समेत 88 मुल्कों में पाकिस्तानी फंसे हुए हैं। हम वतनों को महफूज तरीक़ेकार के तहत वापस लाया जाएगा। मावन खुसूसी मोइद यूसुफ का कहना है वतन वापसी के ख्वाहिशमंद सिफारत खानों में खुद को रजिस्टर्ड कराएं। और शोएब अख्तर और PCB के कानूनी मुशीर तफस्सुल रिजवी के दरमियान तनाज़ा खत्म कराने के लिए साबिक क्रिकेटर्स मैदान में आ गए। शाहिद आफरीदी के बाद मोहम्मद यूसुफ का भी मामला अफ़ाम तफ़हीम से हल करने का मशवरा। कहा दोनों मामला खत्म करें, इससे क्रिकेट पर बुरा असर पड़ता है। और मैं हूं मोनिस रज़ा। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है लॉकडाउन के मनफी असरात मईशत पर असरअंदाज हो रहे हैं। कोरोना वायरस कब तक चलेगा नहीं जानते। कम अज कम 6 माह या 1 साल तक हमें इसी सूरत हाल में रहना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने बेरोजगार अफराद के लिए वेब पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। छोटा कारोबार करने वालों के लिए भी इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। हुकूमत के बड़े इक़दामात। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रोजगार वेब पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। जो भी बेरोजगार है, हम आज आपके सामने एक वेबसाइट का एड्रेस दे रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं एक वेबसाइट। वज़ीर आज़म ने कहा कि लॉकडाउन के मनफी असरात मईशत पर असरअंदाज हो रहे हैं। कम अज कम 6 माह या 1 साल तक हमें इसी सूरत हाल में रहना पड़ेगा। कोई कहता है कि 6 महीने के बाद वैक्सीन आएगी, कोई कहता है 1 साल के बाद आएगी। हम ये नहीं जानते, लेकिन हमें ये पता है कि कम से कम अगले 6 महीने 1 साल तक हमें इसके साथ रहना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने छोटा कारोबार इमदादी पैकेज का भी ऐलान किया। वज़ीर आज़म ने अवाम से ज्यादा एहतियात की अपील की है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पूरे बरसग़ीर में सिर्फ पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें सबसे कम है। हमने एक ही बार में 30 रुपए तक कम किए। वज़ीर आज़म ने तमाम सेक्रेटरीज को हिदायत की कि तेल की कीमतों में कमी के बाद बाकी चीज़ों की कीमतों में भी कमी का जायज़ा लिया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस मरतबा टैक्स की वसूली भी 35% गिर गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के समरात आवाम को मिलना चाहिए। हमें अपनी इंडस्ट्री को चलाना है। हमने अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, अपनी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री जो बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार देती है, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री, इसकी हमने मदद करनी है। तो इनके लिए भी हमने पूरी तरह इंसेंटिव्स दिए हैं। लोगों के लिए बोझ कम करने के लिए, आम आदमी के लिए जो बड़ी मुश्किल में है, हमने पूरी कोशिश की है। ये जो पेट्रोल और डीजल और ये केरोसिन ऑयल, इनकी हम थोड़ी और कीमत ऊपर रख के खुद भी पैसा बना सकती थी गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट भी बड़ी मुश्किल हालात में है। हमारे भी टैक्स कलेक्शन तकरीबन 35% नीचे चली गई है इसकी वजह से, लॉकडाउन की वजह से। लेकिन हमने फिर भी फैसला किया कि इस वक्त आवाम को मैक्सिमम रिलीफ चाहिए, इसलिए हमने उनके लिए ये पूरा ख़ास तौर पर डीजल के ऊपर 42 रुपए लीटर डीजल नीचे आया, जो कि सारे बरसग़ीर में सबसे कम कीमत है, ताकि सब शोबों को फ़ायदा हो इससे। सिंध और वफाक में खलीज बढ़ने लगी। सिंध के वज़रा ने तनकीद भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
जिस में सईद गनी और नासिर हुसैन शाह ने कहा कि अपोजिशन यकजहती की कोशिश कर रही है, लेकिन 18वीं तरमीम का शोशा छोड़ा जा रहा है। हुकूमत को बुनियादी मसाइल का इदराक नहीं है। इमरान खान कौम को तकसीम करने के दर पे हैं। कभी अमीर गरीब की बात करते हैं, कभी लॉकडाउन पर इख्तिलाफ करते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं होता कि काबीना क्या फैसले कर रही है। वज़ीर आज़म ने तमाम सूबों का दौरा किया, लेकिन सिंध नहीं आए। सिंध हुकूमत की तारीफ उनसे हजम नहीं हो रही। सिंध हुकूमत के वुज़रा ने वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि वफाक ने गैर संजीदगी की हद कर दी। वजीर आजम कहते हैं अशराफिया ने लॉकडाउन लगाया। क्या पंजाब और इस्लामाबाद में भी कोई अशराफिया थी? हमने शुरू किया और पंजाब ने भी उसको फॉलो किया, बलोचिस्तान ने भी, केपी ने भी और इस्लामाबाद में भी। क्या वहाँ भी कोई अशराफिया थी, कोई एलीट क्लास थी जिन्होंने इमरान खान साहब से पूछा ही नहीं? इस्लामाबाद में भी किसी ने नहीं पूछा जहाँ पे वो रहते थे। नासिर शाह ने कहा कि शऊर और शोर में सिर्फ ऐन का फर्क है। शोर मचाने वालों को ये समझ नहीं आता। एक होता है शऊर, एक होता है शोर, वो ऐन का फर्क है बीच में। तो जो शऊर रखते हैं वो इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, और जो सिर्फ इस तरह शोर मचाते हैं, शेरू जो हैं, तो उनकी समझ में ये चीज आती नहीं है। सईद गनी ने कहा अपोजिशन ने कौमी यकजहती की बात की तो 18वीं तरमीम का शोशा छोड़ दिया। आज जब कौमी यकजहती की जरूरत है, हुकूमत ये काम नहीं कर रही है, अपोजिशन कोशिश कर रही है कि कौमी यकजहती पैदा हो जाए, 18वीं तरमीम का शोशा आ जाता है। सईद गनी का कहना था कि वजीर आजम को पता ही नहीं चलता काबीना क्या फैसले कर रही है। मैंने एक मीटिंग अटेंड किया, कभी यूं देख रहा होता है, कभी यूं देख रहा होता है, मौजूद नहीं होता मीटिंग के अंदर। तो मेरा ख्याल है वजीर आजम को ये पता ही नहीं चलता कि काबीना क्या फैसले कर रही है। पीपीपी वुज़रा का कहना था कि सिंध हुकूमत पर तनकीद का अमल 6 माह के लिए छोड़ दें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की सिंध हुकूमत पर तनकीद। बोले लॉकडाउन कोई वीडियो गेम का बटन नहीं कि दबाया और निज़ाम रुक गया। सिंध हुकूमत के वुज़रा मुसलसल गलत बयानी कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने ज़रूरत का मतलूबा तिब्बी सामान बर वक्त सिंध हुकूमत को पहुँचाया। सूबाई वुज़रा झूठ बोलने से पहले हक़ाइक़ का मुताला करें। आपने क्या किया? आप ये बार बार कहते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके बिलावल जरदारी को आपको बताने की जिम्मेदारी कि 18वीं तरमीम के बाद लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ, एजुकेशन, ये आपकी जिम्मेदारियां हैं। ये आपने करना है, आपने बैठ के रोना नहीं है, आपने काम करना है। तो बराए मेहरबानी रोना बंद कीजिए। मेरी आपसे गुजारिश ये है, एक तो आवाम से सच बोलिए। आपको कैश नहीं देंगे, कैश हम सिंध की अवाम के हाथ में देंगे। हम आप पे यकीन नहीं करते। आपने पहले भी सिंध की अवाम का पैसा लूटा है। मुझे लगता है कि थोड़ी देर के बाद ये भी केस नैब में जाना है। मुझे शक है, मैं यकीन से नहीं कह सकता फिलहाल क्योंकि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, लेकिन आपकी स्टेटमेंट और जब डॉक्यूमेंट्स देखता हूं तो फिर ये जरूर यकीन हुआ चला जा रहा है कि आपने ये सामान कहीं आगे पीछे कर दिया है। वफाकी वजीर फैसल वाडा कहते हैं कि पता नहीं सिंध हुकूमत किस मुंह से इस्तीफा मांग रही है। अगर हम कुछ करने पर आए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सिंध हुकूमत नाअहली छुपाने के लिए बयानबाजी कर रही है। फैसल वावडा का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में कोई काम नहीं किया। सिंध में अरबों रुपए की करप्शन की गई। सिंध हुकूमत की नालायकी सबके सामने है। आप लोग बजाय हमसे इस्तीफा और वफाक से इस्तीफा मांगने की तो आप ख्वाहिश रख सकते हैं, आप कर कुछ नहीं सकते। हम करने पे आए तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपनी नाकामी मान गए हैं, आप नाअहल हैं और आप नाकाम हो चुके हैं और आप वफाक की तरफ देखना चाहते हैं, तो इस्तीफे से ज्यादा बेहतर था कि आप ये कहते कि कोरोना वायरस को संभालने के लिए गवर्नर राज लगा देते। अपनी चोरी को और अपनी चार्जशीट को खुद ही पब्लिक के सामने ले आए कि हम नालायक भी हैं, निकम्मे भी हैं, फरेबी भी हैं, झूठे भी हैं, मक्कार भी और बेईमान भी हैं। ये ड्रामे बंद करें और ये इस्तीफा मांगने से बेहतर है अपने गिरबान में झांके खुद इस्तीफा भी दे और खुद अपने आप को यहाँ से आइसोलेट कर दे सूबे से। जिसमें महारत रखते हैं वो बताएं, हम खा गए बोरियां आटे की, गंदम की, फंड, राशन के पैसे, टेस्टों के पैसे, मेडिकल के पैसे, और जो हम 20 साल से सूबे को खा रहे, ये जो आपकी खूबी है, इनको आके आप रोज बताएं तो लोग यकीन भी करेंगे और अप्रिशिएट भी करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की खतरनाक वार में तेजी आ गई। 24 घंटों में रिकॉर्ड 32 अफराद जान से गए, जिसके बाद मुल्क में हलाकतों की तादाद 432 हो गई। 1297 नए केसेस सामने आए। मुतासरीन की तादाद 18,777 तक पहुंच गई। सिंध में 7,102 और पंजाब में 6,854 अफराद कोरोना से मुतासर हैं। मुल्क में अब तक 4,753 अफराद सेहतियाब भी हो चुके हैं।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि बैरून मुल्क से आने वाले अफराद को घरों में करंतना करने की सिफारिश वफाक को भिजवाई जाएगी। सूबे भर में कल से 6000 टेस्ट यौमिया किए जाएंगे। 28 लाख खानदानों में 34 अरब तकसीम किए जा चुके हैं। लाहौर में वीडियो लिंक के जरिए वज़ीर आला पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस उस्मान बुज़दार ने बताया कि 90% ज़ायरीन और तबलीगी जमात के अफराद सेहतियाब होकर घरों में जा चुके। बैरून मुल्क से आने वालों को घरों में करंतना करने की सिफारिश वफाक को भिजवाई जाएगी। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरावाला और गुजरात में स्मार्ट सैंपलिंग का सिलसिला शुरू किया गया है। इब्तदाई तौर पर 6 अजला में स्मार्ट सैंपलिंग का आगाज कर रहे हैं। इन अजला में लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरावाला, गुजरात और फैसलाबाद शामिल है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कंस्ट्रक्शन से मुतालिक इंडस्ट्री, पावर लूम्स, एक्सपोर्ट सेक्टर खोलने की सिफारिशात की गई हैं। मार्केट्स खोलने के हवाले से जोन्स के मुताबिक सिफारिशात मुरतब करके वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई हैं। इससे कबल उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर असलम इकबाल और चेयरमैन टोयोटा अली सलमान की मुलाकात। चीफ मिनिस्टर फंड में ₹1 लाख का चेक दिया। लाहौर के एक्सपो फील्ड अस्पताल में बदतरीन हालात